ਅਜੀਬੋ ਅਜੀਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਚਲੋ ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੀਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਸੈੱਲ ਪਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤੀ ਸਾਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿਲਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਲ ਪਲ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰੋ ਓਨੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੀਨਾ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਕਰੀਬ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨੋਰਮਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ, ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਹੈ। ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੋਲੀ ਦਾ, ਦੇਖੀਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡੀ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਸੈਕਟਰਾ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਮੈਸੇਜ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਖੁਦ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ
श्वास उन्होंने बख्शे हुए आ, सब कुछ उन्होंने दिता है, घर भी उन्होंने दिता, श्वास साडे अपने नहीं तो घर साडा अपना कित्थों होना, सब कुछ उन्होंने दिता है ना। तो सो उन्होंने दिती हर दात दा कोटम कोट शुकराना, पल पल शुकराना, श्वास श्वास शुकराना, उन्होंने दिया ना चंगा खा रहे हैं शुकराना, चंगा पा रहे हैं शुकराना, चंगा हंडा रहे हैं शुकराना, समाज च गुरु जी ने इज्जत बनाई हुई है ਉਹਦਾ शुकराना, इदी कृपा दृष्टि बनाए रखन, बीमारियां तो दूर रखा होया शुकराना, अन्न दे भंडार भरे हुए है शुकराना, गुरु जी के खजाने भरे हुए है, ਉਹਦਾ कोटम कोट शुकराना, अपने नाम की दात दिती है, अपने कोल बिठाते हैं, जिन्नी देर भी बिठाते हैं, ਉਹਦਾ भी कोटम कोट शुकराना, नहीं तो असी की औकात, असी एक सकिंट भी उन्होंने कोल बैठ पाईए। सत्संग भी सुनवाते गुरु जी, चाहे चलते फिरते सुन लईदा, जां जिन्नी क उन्हां दी हुंदी है गुरु जी की इच्छा कोल बिठा लेंदे है, तुरते फिरते सुन लईदे, काम करते सुन लईदे, ये भी उन्हां दी रज़ा तो बिना नहीं सुन पाते, कई बार विच नहीं सुन पाए, है ना। इच्छा तो बहुत हुंदी है बट सरकमस्टांसिस उदां दे बन जाते हैं, नहीं सुन पाते। सो शुकराना 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 शुकराना, कोटम कोट शुकराना। इदे अंकल जी बारे भी, बेटे बारे भी मैसेज आ रहे थे, उस दिन हो गया हफ्ता क, एक शाम रात ਨੂੰ ਮਤ अंकल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बहुत ज़्यादा, बहुत उन्होंने वॉमिट वगैरह आन ਨੂੰ ਹੋਵੇ, सिर चक्कर आवे, मतलब अजीबो अजीब कह रहे थे, मेरे पता नहीं की हो रहा अंदर, मेरे पता नहीं की चल रहा, की हो रहा। तो फिर कुदरती दिमाग च आया, कह रहे थे चक्कर आ रहे, किस तरह कन्ना च सीटियां वज रही हैं, तो दिमाग च आया चलो बीपी चैक करते हैं। तो बीपी मशीन घर रखी हुई है, फटाफट सैल पाए वो बीपी चैक किया तो बीपी बहुत हाई सी, पर मैं इन्हों प्रॉपर पूरा तो नहीं दसिया, क्योंकि वो बंदे जिदा जिदा दसो उन्होंने फिर उदा ही फील होने लग पैंदा, इन्ना तो मैंने पता सी बीपी इन्हां दा हाई है। तो बट इन्हों मैं दसिया तो सही हाई है, पर पूरा नहीं दसिया भी किन्ना आया। सो चलो जल प्रसाद दिता, गैस वाली गोली भी दी भी शायद गैस करके बीपी हाई हो गया। तो बैठे रहे अंदरों सीगा तो सी, उन्होंने भी टेंशन सी, पता नहीं मैं सवेरे उठना कि नहीं उठना सीगा, तो मैनू भी, पर वो पता नहीं गुरु महाराज जी ने मतलब कि लिटे जरूर है पर नींद नहीं आई, अंदर ही अंदर कभी हनुमान चालीसा मतलब मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़िए, मन ही मन मंत्र जाप करिए गुरु जी का, कभी वाहेगुरु जाप, मतलब अपने आप ही चली गया। गुरु जी ने चलाया, जगाया, सवेरे 5 बजे 5:05 तो बाद जाके अंकल की अख लगी, तो मैं भी थोड़ी देर पई। अच्छा, उस तो पहला उस रात भी, जिस रात तबीयत खराब हुई है ना, उस रात भी तो उस तो पहले भी एक सत्संग सी, वो गुरु जी ने मैनू वो रात दोबारा सुनवाया, ਉਹਦੇ 'ਚ भी वो आंटी मतलब कह रही सी भी इदां दा उन्हां दे हसबैंड की तबीयत खराब है, तो टेस्ट करवाने ਨੂੰ कह रहे हैं, तो रात ਨੂੰ उन्हां दी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई, तो गुरु जी महाराज जी ने उन्होंने जगाई रखा। 3 बजे उन्हां दी बेटी की भी तबीयत खराब हो गई, पहले हसबैंड ठीक नहीं सी, उन्हां दी तबीयत ठीक नहीं सी अंकल दी, तो गुरु जी महाराज जी ने उन्होंने जगाई रखा, तो सिमरन करवाया। सेम उही चीज़ गुरु जी ने साडे नाल भी कीती, बट शुकराना, कोटम-कोट शुकराना, मतलब अंकल 9 साढ़े 9 उस दिन जाके उठे, चलो ठीक ठाक सी, फिर दोबारा बीपी चैक किया, थोड़ा जिहा घटिया होया सी, फिर अपने वड्डे जवाई अंकल नूं फोन किया, उन्हां कोलों दवाई मंगवाई, बाद च होर भी दवाई लैके आई, तो गुरु जी महाराज जी की दया नाल हुण अगे नालों बीपी का फर्क है, घट गया। बस वही कहने ना, जे गुरु जी महाराज जी इदां दे मैसेज सुनवाते तो उन्हों का किया सब सच है, वो सुनवा के सत्संग सुनवा के साडे कष्ट कटवा देंगे है, अलर्ट कर देंगे है। फिर वही है ना, जो दुख है तो अपन अरदास करिए, है ना, अरदास ही सब तो वड्डी चाबी साडी अरदास है, नाम सिमरन है बस। सो कोटम कोट शुकराना गुरु जी महाराज जी, कोटम कोट शुकराना, तुसी अंकल जी ने उस टाइम बचाया, नहीं तो उस रात
ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਟਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਬੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ, ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਣਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ, ਸਭ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪਾਓ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਫਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਸਤਾ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਬਸ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆ ਮੰਦਰ ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਚ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਮਿਨਾ, ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟੈਮਿਨਾ, ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਣ, ਬਸ ਸੰਤਨ 2 ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी। आज मैं फिर से अपना शुक्रवार के दिन शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। संगत जी, आज बहुत दिन के बाद गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ और गुरु जी से यही अरदास किया है कि जो आप बुलवाना चाहते हो गुरु जी आप बुलवाओ।
क्योंकि मुझे तो इतने अपने भावों को प्रकट करना नहीं आता है। और सत्संग सुनते हैं कितना अच्छा लगता है। बुधवार के दिन मोनिका का सत्संग सुना तो इतना मेरे आँखों में बहुत आंसू आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब वो सत्संग सुनाते ऐसे लगता है गुरुजी बैठे हैं और गुरुजी हमें मतलब अपना जो भी है अपना हमें समझाने के लिए मतलब एक जरिया बना दिया, जो मोनिका के मुख से हम सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसा लगता है कि जैसे अपना ही मैं सत्संग सुन रही हूँ, जो क्योंकि वो घर की बातें कर रही थी, घर चेंज, तो हमारा भी यही कुछ चल रहा है यहाँ पर। और गुरु महाराज ने नवरात्रों में बहुत ब्लेसिंग दी बच्चों को। फर्स्ट नवरात्रि में बच्चे की बेटे को बड़ी गाड़ी दिलवाई और उसका नंबर भी 7044। तो 44 की ब्लेसिंग, 7 नंबर की ब्लेसिंग। और अष्टमी के दिन गुरु महाराज ने फ्लैट मतलब फ्लैट तो पहले ले रखा था, तो वहाँ पर हमने कलश स्थापना करी उसके नए फ्लैट में अष्टमी के दिन। और फ्लैट का नंबर भी 1006। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि आप तेरे जन नवरात्रों में तुझे बहुत खुशियाँ देने वाली बहुत ब्लेसिंग मिलेगी मेरी और माता रानी की। तो गुरु महाराज और माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं कभी सोचती हूँ जैसे कि हमारे पिछले कर्म क्या थे क्या नहीं, वो गुरु महाराज को वो जानते हैं। हमारे सब कर्मों को, जो हमने कर्म किए हैं उनको गुरु महाराज ठीक करने के लिए आए। अगर हमने कोई बुरे, हमें तो पता नहीं हम क्या करके आए हैं और इस जन्म में हमने क्या किया और दूसरे जन्म में हमने क्या करके आए हैं। तो गुरु महाराज इस संसार में आए हमारे बुरे कर्मों को धोने के लिए और हमें सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए। तो गुरु जी, हम सब आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि आप इस धरती पे आए, हमें सही राह दिखाई और हमें शुक्राना करना सिखाया। हमें शुक्राना करना नहीं आता था, ना हमें गुरु की वाणी का कोई ज्ञान था। आज मैं हूँ तो मतलब पहाड़ी हूँ, मुझे इतना नहीं पता था। गुरुद्वारा तो मैं बचपन से बहुत जाती थी मम्मी के साथ में, हम क्योंकि हम दिल्ली में शुरू से रहे हैं। तो पापा पुलिस में थे तो क्वार्टर्स थे, हम क्वार्टर में रहे, तो वहाँ काफ़ी लोग श्रद्धालुओं के बीच में हम रहे। तो हम प्रभात फेरी भी देखते थे, घर के सामने से जाती थी। तो शुरू से हम गुरुद्वारे बहुत जाते थे, मगर कभी हमने शबद गुरबानी क्या होता है, गुरबानी और सुखमनी साहब का पाठ, ये सब कुछ नहीं पता था हमें। जब से गुरु जी के शरण में आए, गुरु जी ने गुरु की वाणी से हमें जोड़ा। आज हम गुरु जी का आशीर्वाद है, मेहर है कि हम जपूसी साहब का पाठ भी कर लेते हैं, सुखमनी साहब का पाठ भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने हमें गुरबानी के साथ जोड़ा, जिससे हमें रोज़ सुबह मॉर्निंग को रिंकू भी जी का शबद गुरबानी सुनते इतना अच्छा लगता है, मन में एक शांति सी मिलती है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हमें सही राह दिखाने का। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले तनी आप लोगों ने भी देखा होगा, हरीश राणा का केस था। कोई लड़का था जो 2013 में कोई हादसा हुआ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था। तो एक हादसे में उसका ब्रेन हेमरेज हुआ और वो कोमा में चला गया। वो 13 साल तक कोमा में रहा। मम्मी पापा ने उसकी बहुत सेवा करी। तो मैं मतलब इतना दुख लग रहा था उस बच्चे की सुनकर। मैं और उसके माँ बाप कोर्ट में घूम रहे हैं कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हम इसकी सेवा नहीं कर सकते। वो 13 साल तक बिस्तर में था संगत जी, और माँ बाप ने उनकी सेवा करी। तो अब उसके माँ बाप कोर्ट में घूम रहे थे इच्छा मृत्यु के लिए, एक बेटे के लिए। तो मैं यही सोचती हूँ कि उसके क्या कर्म थे बच्चे के, और क्या कर्म थे उसके माँ बाप के, जो एक अपनी ही बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए माँ बाप इच्छा मृत्यु के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। आप सोच नहीं सकते संगत जी। मैं मतलब
मैं सोच रही थी कि इनके क्या मतलब कितना उन लोगों को मन में बीतती होगी, माँ बाप जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चले गए अपने बच्चे की इच्छा मृत्यु के लिए। आज हम माँ बाप भी मम्मी माँ हैं, बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं कि बच्चे की लंबी उम्र हो, बच्चे के ऊपर कोई कष्ट रोग ना आए। आज उस माँ बाप के ऊपर सोचो जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए मतलब इच्छा मृत्यु की कामना लेकर घूम रहे हैं कोर्ट कोर्ट में। हाई कोर्ट ने तो मना कर दिया था मगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी। और जब से घर में आए, एम्स में ले गए उसके बच्चे को, तो जाने से पहले ब्रह्मा कुमारी की दीदी वगैरह आई तो उसको टीका लगाया और बोला कि बच्चे सबको माफ़ कर दे और उड़ जाओ। तो ब्रह्मा कुमारी भी शिव बाबा का ही है। मैंने भी उनकी क्लास ले रखी, 1 हफ्ते की क्लास होती है। इसमें पूरा शिव बाबा का ही ज्ञान है। शिव बाबा ने सब मतलब इसमें पूरे तो शिव बाबा ने सब संभाल रखा है ऐसे करके, पूरा शिव बाबा का ही है उसमें भी। तो जो भी मैंने ज्ञान लिया तो शिव बाबा के ऊपर ही लिया। उसमें मैंने पूरी 1 हफ्ते क्लास लेके तो ब्रह्मा कुमारी दीदी वगैरह आई, उसके टीका लगाया। तो मुझे मतलब उस 14 मार्च को एम्स ले गए थे उसको, तो और 24 मार्च की उसकी मृत्यु हुई, संसार से वो चला गया। तो जब उसके सारे जितने थे लगे थे उसके जो भी जो पाइप वगैरह निकाल दिए, दवाइयाँ से बंद कर दी। तो वो एक एक सांस के लिए तड़पता रहा। 24 मार्च की उसकी मतलब सांस वो गुरु जी के चरणों में गया, भगवान ने अपने चरणों में उसको ले लिया। तो हम नहीं सोच सकते कि क्या है क्या नहीं, बस गुरु महाराज हम अपने कर्मों के जो हम कर्म करके आए उसके लिए अगर हमने कोई बुरे उसके लिए हमें माफ़ करना, क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या कर्म करके आए हैं। मेरी आँखों में बहुत आंसू आए, उस बारे में मैं अभी भी सोचती रहती हूँ। और उसके बाद जब हम माँ बाप आए, हाथ जोड़े कि अब कोई मत रोए, उसको अच्छे से मोक्ष मिल जाए, बस हम यही प्रार्थना शिव बाबा से करते हैं। तो संगत जी मुझे वो मैं वो पूरे अब मैं उसके बारे में देखती रहती थी। तो इतना अच्छा लड़का था, क्या उसके कर्म थे, क्या माँ बाप के कर्म थे हमें नहीं पता। तो अच्छा गुरु महाराज हम आपसे यही माफ़ी मांगते हैं कि हमने अगर कोई ऐसे कर्म किए हैं तो उनको हमें माफ़ करना। आप हमारे कर्मों को सुधारने के लिए आए, हमें सही राह दिखाने के लिए आए उस संसार में। आपने बहुत कष्ट लिए, क्योंकि मैंने पुरानी संगत के मैं सत्संग सुनती हूँ जो गुरुजी के टाइम के हैं, जो अभी भी हैं और सत्संग सुनाते हैं। कहते हैं गुरुजी खून की उल्टियाँ करते थे। हमारे ने किसी मतलब संगत को कैंसर था, ब्लड कैंसर, तो उसके सारे कैंसर को उन्होंने ठीक कर दिया। कहते हमने खुद देखा गुरुजी खून की उल्टियाँ करते थे। मतलब गुरुजी अपने ऊपर सारे संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे। तो उस ऐसे गुरु को बल जाइए। सच में हमें ऐसे गुरु मिले हैं, हमारे कुछ होंगे कुछ थोड़े बहुत अच्छे कर्म जो हम अपने गुरु महाराज के शरण में गए, उन्होंने हमारा हाथ थामा, हमें हर कीचड़ से हर दलदल से हमें निकाला। हम बहुत फंसे हुए थे संगत जी इस दलदल में, चारों तरफ हमारे बस क्या बोलूं, दलदल ही था, कीचड़ में थे, धंसे हुए थे, निकल नहीं पा रहे थे। उस जगह से हमें हाथ पकड़ कर निकाला और हमें नई ज़िंदगी दी। कहते ना हमारे 2 बार जन्म हुआ है हमारा, जो पहले हम जब हुए थे हुए, जब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा तब वो हमारा दूसरा जन्म था। हमें नई ज़िंदगी दी गुरु महाराज ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इतना अच्छा संग परिवार दिया, उसका भी बहुत शुक्राना। आज ये संगत परिवार रूहानी बेटा और मोनिका बेटी ने सबको एक साथ बांध के रखा हुआ है। बहुत अच्छा लगता है, सत्संग सुनती हूँ सबके, बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं सोमवार को बड़े मंदिर गई थी, तो जब मैं आई, मैं बस अपना कार में जब निकली तो ऑटो में बैठी, ब्लूटूथ ऑन किया, कान में लगाया, मैं सत्संग सुन लगी। उस टाइम भी मोनिका का सत्संग आया था। तो उस दिन बड़े मंदिर में लड्डू का प्रसाद
और बेड पकड़ा था। तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैंने लड्डू प्रसाद ले लिया और मैंने कहा चलो घर जाकर सबको खिलाऊंगी, खुद खाऊंगा। मैं कभी लेकर नहीं थी, उस दिन पहली बार मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई थी। उस दिन कड़ा प्रसाद नहीं था, लड्डू प्रसाद। हाथ में प्रसाद था मेरे, लड्डू प्रसाद। तो उसी टाइम मोनिका का सत्संग आया। कहने लगे कि मैंने सपना देखा एक, उसमें मुझे लड्डू का मतलब सपने में दिखाई दिया। तो वही मेरे बच्चे कहते मैं हाथ में लड्डू और मैं वही सत्संग सुन रही हूँ जो मोनिका सुना रही है। वो कह रही है कि 777 की ब्लेसिंग मिली और सामने से 777 की गाड़ी मैंने देखी। जो उन्होंने कहा कि मुझे 11 की ब्लेसिंग, तो आगे से मेरे 11 की ब्लेसिंग जा रही है। मतलब वो सुनाते जा रहे हैं और वही वो गुरु महाराज मुझे ब्लेसिंग देते जा रहे हैं। मतलब इतना मेरा मन इतना खुश हो गया, मेरे आँखों में आंसू आ गए। मैंने गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना आपका, हर चीज़ में आप ब्लेसिंग देते हो, ब्लेस करते हो, हमें अपने होने का एहसास दिलाते हो। जब भी मैं फ़ोन खोलती हूँ ना, कभी हमेशा 77, कभी 777 के ब्लेसिंग 7 बज रहे होते हैं, कभी 7 ब्लेस मतलब % बैटरी होती है, तो 777 की ब्लेसिंग। मैंने कहा गुरु महाराज कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं बैठे बैठे हमें एंजल नंबर की ब्लेसिंग देते रहते हो। बहुत खुशी, आज ज़िंदगी में बहुत शांति है। जो नेगेटिव लोग थे, जो हमारे लिए बुरा सोचते थे, लोग गुरु महाराज ने अपने आप ही हमसे दूर कर दिया। आज बच्चों की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ दी है गुरु महाराज ने। तो एक बेटी का सत्संग सुनती जिसकी शादी होने वाली है, वो बताई थे, तो बहुत अच्छा लगा उनका। मैंने कहा गुरु महाराज मेरी भी बेटी क्या आपकी बेटी है, उसकी भी शादी है 26 नवंबर को। बस गुरु महाराज शुभ काम, सबकी बेटियां साझी होती है ना, सब बेटियों की शादी शुभ कार्य हाथ पकड़ के अच्छी तरह से करवा देना गुरु महाराज। कोई विघ्न ना आए, कोई रुकावट ना आए, हर बुरे नज़र से बचाए रखना गुरु महाराज। सब बेटियों का घर संसार अच्छी तरह से बसे, उनके ज़िंदगी में जीवन साथी जो उनको समझ सके, उनको देखभाल कर सके, उनकी केयर कर सके, ऐसे जीवन साथी देना। आपने दिया भी है, आपने मिलवाया भी है। बस गुरु महाराज रुकावटें तो बहुत आई बेटी की उसमें शादी के टाइम, मतलब फिर भी आपने उनको जोड़े रखा। अब वो शादी कर रहे हैं गुरु महाराज। दोनों आशीर्वाद देना सब बेटियों को कि ज़िंदगी में हंसी खुशी रहे। बस गुरु बाबा आपका आशीर्वाद, आपकी मेहर सदा बनी रहे। कहते हैं ना जितने मेहर थी उतना सदा ही खुशियाँ गुरु महाराज। सबको चढ़ती कला में रखना, सबका भला करना मेरे गुरु महाराज। आप कहते हो सबको माफ़ कर दो, हमने सबको माफ़ कर दिया। हम कौन होते हैं माफ़ करने वाले? आप हो गुरु महाराज, सबको माफ़ करने वाले। तो हम तो बस आपकी शरण में है गुरु महाराज, अपने शरण में लगाए रखना। और ये संगत परिवार जो दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अभी थोड़े दिन सत्संग नहीं आया तो मन उदास हो गया। मैंने मैसेज किया, उन्होंने कहा काम था। सो होता है, मार्च का महीना है। मेरे बेटे भी, जो बड़ा वाला बेटा और बहू, वो भी MNC में करते हैं, वो भी बहुत बिजी थे मार्च के महीने, क्योंकि क्लोजिंग का होता है। तो उनको टाइम नहीं मिला, बेचारे टाइम निकालकर इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। महाराज इन सबको ब्लेस करना, बच्चों को जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बस अपनी सेवा में ऐसे बनाए रखना, अपना पाठ, आपका सिमरन बस ऐसे करते रहे जब तक ये ज़िंदगी है, सांस है गुरु महाराज। बस अपना पाठ सिमरन ऐसे कराते रहना। हमें तो कभी पाठ का पता ही नहीं था, पुराण का, शिव पुराण का नहीं पता था। आज 50+ हो चुके हैं गुरु महाराज, कभी पढ़ा ही नहीं था। जब से आप आए हो आपने पढ़वाया, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। इतना आपने बस कहते ना जो हमारी ज़िंदगी को एक सफल बना दिया। हमने अब हम पुराण पाठ भी करते हैं, शिव पुराण भी पढ़े, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका आशीर्वाद, आपका बस इसी तरह बना रहे पूरे परिवार पर। इसी नोट पे अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर मैं विराम देती हूँ। थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है संगत जी, सांस की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए आराम से कर रही हूँ बैठकर।
कि आपको सांस की आवाज़ ना आए। सांस की बहुत था तो बहुत काफ़ी ठीक हो गए गुरु जी के जल प्रसाद से। बहुत शुक्राना है गुरु महाराज, बहुत शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी गुरु जी के चरणों में। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा 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 सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रोहानी आंटी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना शुक्राना। गुरु जी शुक्राना शुक्राना।